سوال کیا جاتا ہے کون ہے؟ کہا میں عثمان ہوں۔ نبی رحمت کی طرف سے جواب ملتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، دروازے پہ رکو۔ نبی رحمت اٹھتے ہیں، اپنا لباس درست کرتے ہیں، اپنی بیٹھنے کی حیت کو تبدیل کرتے ہیں، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت کے پاس گھر میں آتے ہیں، اپنے چند جملے باتوں کے کر کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ الطاہرہ طیبہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی رحمت سے سوال کرتی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کائنات کی بہترین شخصیت ابو بکر آئے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے یہ والا اہتمام نہیں کیا جو آپ نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا۔ اللہ کی قسم ہے اگر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کی صفات اور خوبیوں میں یہ ایک جملے کے علاوہ باقی ساری باتوں کو مٹا دیا جائے تو اس آسمان کی چھت کے نیچے اس سورج کی روشنی لینے والی اس سرزمین کے اوپر اللہ کی قسم ہے ایسی دوسری شخصیت کا نام لینا بھی ممکن نہ رہے جس کے لیے کائنات کے امام نے فرمایا عائشہ میں نے ایسے ہی اہتمام نہیں کیا، میں نے ایسے ہی اپنی حیثیت کو تبدیل نہیں کیا، میں نے ایسے ہی اپنے رنگ کو نہیں بدلا۔ اصل بات یہ ہے الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، فرمایا عائشہ کیا میں اس کا حیا نہ کروں؟ آسمان کے فرشتے بھی جس کا حیا کرتے ہیں۔ کائنات میں اللہ رب العالمین نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان صفات سے متصف کیا اور ان صفات سے نوازا، ان خوبیوں سے مزین کیا جو کائنات میں شاید کسی دوسرے کے مقدر میں نہیں آئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں اور پوری تاریخ انسانیت کے اندر کوئی ایک شخصیت بھی آسمان کی چھت کے نیچے موجود نہیں ہے جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں رہی ہوں۔ عثمان کو یہ شرف حاصل ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی رحمت نے اپنی پہلی بیٹی کی وفات کے بعد خود کہہ کر کے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلی ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے اور حبشہ کے اندر قیام کیا، حبشہ میں ٹھہرے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہجرت کرنے والی ان کی بیوی سارہ کے بعد اگر کائنات میں تو بہترین جوڑا اپنا گھر بار اللہ کے لیے چھوڑ کے نکلا ہے تو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان صفات کے ساتھ نوازا کہ جب احد پہاڑ کے اوپر میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر ہیں، راوی بیان کرتا ہے، راوی حدیث ذکر کرتا ہے کہ عثمان پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ایک ابو بکر ہیں، ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ احد پہاڑ میں حرکت اور جنبش ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر علیہ السلام پہاڑ کے اوپر اپنے پاؤں کو مار کے کہتے ہیں اثبت یا احد، احد اپنی جگہ پر جم جا اور ٹھہر جا، حرکت نہ کر، جنبش نہ کر، انما علیکا نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا اس وقت تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی بیٹھا ہوا ہے، ایک اللہ کے نبی کا صدیق بیٹھا ہوا ہے اور دو شہید تیرے اوپر اس وقت موجود ہیں۔ میرے بھائیو ذرا تصور کریں کہ اس شخصیت کو جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر اس بات کی بشارت دے کہ اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے گا اور پھر وہ سرزمین کے اوپر چل رہا ہو تو اس کی زندگی کیا زندگی ہوگی، اس کا جینا کیا جینا ہوگا۔ اور شاید کائنات میں یہ بھی شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا، یہ بھی فخر کسی کو میسر نہیں آیا، یہ بھی فضیلت کسی کے نصیب اور مقدر میں نہیں آئی کہ بندہ موجود نہ ہو اور کائنات کے امام یہ کہیں کہ وہ اگرچہ موجود نہیں ہے لیکن میں اسے یہاں ہی شمار کرتا ہوں۔ پہلا موقع بدر کا موقع جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہو سکے۔ نبی کی بیٹی
सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीमारी की वजह से पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उस्मान तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम जहाँ से भी गुजरेंगे, जहाँ भी पड़ाव करेंगे, जिस जगह भी हम जाएंगे, जो भी नतीजा और अंजाम वहाँ मैदान जंग के अंदर होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह का तुम्हें बराबर सवाब अता फरमाएगा। और शायद ये भी कायनात के अंदर वाहिद शख्सियत है कि जिन्होंने जंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के जंग से वापसी पर मदीना मुनव्वरा पहुँच करके वो माले गनीमत जिसकी तकसीम अर्श वाले रब ने आसमानों से की है, यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, उसकी तकसीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करवाया है। उस तकसीम के ज़रिए कायनात के इमाम ने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिस्सा दे करके फरमाया, उस्मान अगरचे तुम इस जंग के अंदर शामिल नहीं हुए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें उस जंग के अंदर शरीक और शामिल रखा है, सवाब में भी तुम शरीक हो और उसके माले गनीमत के अंदर भी तुम शरीक हो। मेरे भाइयों, कायनात में शायद ऐसा मौका दोबारा नहीं आया होगा कि जब दरख्त के नीचे कायनात के इमाम बैत ले रहे हैं, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से बैत किस बात की ले रहे हैं? वो नबी जिसको मदीना मुनव्वरा से निकलते हुए भी अंदाज़ा था कि मक्का में लड़ाई का माहौल बन सकता है, आप यहाँ से अमन के पैगाम देते हुए निकले, हुदैबिया के मुकाम पे ठहरे, वहाँ पर भी मुसलमानों की हालत ये रही कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार आकर के अर्ज़ करते रहे, अल्लाह के महबूब पैगम्बर क्या हम हक़ पे नहीं हैं, क्या हमारा दुश्मन बातिल पे नहीं है, फिर हम क्यों इनके साथ लड़ाई नहीं करते? नबी रहमत ने कहा लड़ने के लिए नहीं आए, लड़ाई के लिए नहीं आए, लेकिन वही नबी, वही मुकाम, वही जगह जब ये पैगाम मिलता है कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, वही नबी रहमत अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, फरमाया मेरे सहाबा मेरे हाथ पे हाथ रख के इस बात का अहद करना है, अब तुमने या तो उस्मान के खून का बदला लेंगे या यहाँ पर सारे शहीद हो जाएंगे। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको रब्बे कायनात ने ये शर्फ अता किया है कि नबी रहमत का इस तरह से हाथ निकला हुआ है, सहाबा बारी बारी आकर के नबी के हाथ पे बैत करते जाते हैं, बैत करने वालों की गिनती मुकम्मिल हो गई है, जो मौजूद थे सब ने बैत कर ली है, लेकिन नबी का हाथ अभी बाहर निकला हुआ है, नबी का हाथ अभी बाहर ही है। फरमाया मेरे सहाबा तुम गवाह रहना, ये हाथ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ है और ये हाथ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ है, और अपने मुबारक हाथ को अपने ही हाथ के अंदर दे करके फरमाया कि ये हाथ उस्मान का है और ये बैत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, अगर वो जिंदा उनकी बैत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान उतार दिया, फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, नीचे हाथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, ऊपर वाला हाथ भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, आसमान वाला कुरान उतारता है, फरमाया ये नीचे वाला हाथ, ये दरमियान वाला हाथ और इनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ है। ये सआदत और शरफ मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर अता किया है तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और उनको मालिक कौनैन ने उन खूबियों से नवाजा कि जब मदीना मुनव्वरा में अपने दौरे खिलाफत में सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने मस्जिद में जाने से रोक दिया, कहा तुम मस्जिद में जाके ना नमाज पढ़ सकते हो, ना मस्जिद में इमामत करवाने की तुम्हें इजाज़त है, मदीना मुनव्वरा के अंदर जो पानी का कुआं है वहाँ से पानी पीने की इजाज़त नहीं है, मस्जिद से पानी नमाज मस्जिद में पढ़ने की इजाज़त नहीं है। वो अमीर अल मोमिनीन मुसलमानों के खलीफा जिनके बारे में इमाम हसन अल बसरी ने एक ऐसा जुमला फरमाया था, कहा मैंने मदीना मुनव्वरा के उस मस्जिद नबवी को देखा, उस वक़्त में जब मस्जिद नबवी अमीर अल मोमिनीन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत की मस्जिद थी, कहा दोपहर का वक्त होता है, लोग अपने काम काज से थके मांदे
आकर के मस्जिद के अंदर लेट जाते, कैलूला करने के लिए मस्जिद के अंदर आते और आकर के मस्जिद में लेटे होते। शागिर्द ने सवाल कर दिया, कहा उस्ताद मोहतरम कौन कौन लोग होते थे जो दोपहर के वक़्त में मस्जिद में आकर के लेटा करते थे? नाम लेने शुरू किए तो लिस्ट का पहला नाम जिक्र किया। फरमाया पहला नाम उस्मान बिन अफ़्फ़ान अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। फरमाया उस्मान दोपहर के वक़्त में मस्जिद के अंदर आकर के कैलूले के लिए लेट जाते। मदीना के आम लोग, शायद ये बात इस मुल्क के वासियों को समझ आना मुश्किल हो, या इस बात का तसव्वुर करना इस मुल्क के वासियों के लिए मुश्किल हो कि जिनके सामने एक इलाके के एसएचओ के पास जाने के लिए दसियों गार्डों के पास से गुजर करके जाना पड़ता है। जिस इलाके के हुक्मरान और हुक्मरान नहीं, हुक्मरानों के जूते पॉलिश करने वालों की गाड़ियों के पास से गुजर जाने वाला, और उसका गुजरना जुर्म और गुनाह साबित होता है और उसको गोलियों से भून दिया जाता है। जिस इलाके के हुक्मरानों के लिए रोडों को बंद करके एम्बुलेंसों तक को गुजरने की इजाज़त नहीं होती, शायद ये बात उनके जहनों में आसानी से ना समा सके कि एक वो शख्सियत भी है जिसकी हुकूमत का और जिसकी सल्तनत का दौर और वो मशरक़ व मगरब को अबूर करता है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाते जाएं, इलाकों के इलाके जिनकी सल्तनत का हिस्सा हैं, वो दोपहर को मस्जिद नबवी में लेटे हुए हैं और मदीने के लोग आकर के पास बैठ के इस तरह बातें कर रहे हैं का अन्नहु रजुलुम मिनहुम, लगता ही नहीं है कि ये हाकिम वक़्त अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। लोग ऐसे ही आके बातें कर रहे हैं जैसे यार दोस्तों से बातें की जाती हैं। वो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अज़रबैजान और आर्मीनिया महाज खुले हुए हैं, लड़ाइयाँ जारी हैं, फतूहात आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं। सहाबा में से एक सहाबी सैयदना हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़रबैजान आर्मीनिया के उन ग़ज़वात में शरीक हैं। वहाँ उन्होंने एक चीज़ देखी, वहाँ उन्होंने एक मुआमिला देखा, एक चीज़ महसूस की कि लोग जब कुरान की क़िराअत व तिलावत करते हैं तो वहाँ आपस में इख्तिलाफ शुरू हो गया है, इसलिए कि सहाबा ने अपने अपने हाथों से नबी की ज़ुबान से सुना हुआ कुरान लिखा था, उसके ऊपर एराब का कोई सिलसिला नहीं था। अजमी लोग मुसलमान होना शुरू हुए, जब कुरान की क़िराअत करने लगते इख्तिलाफ हो जाता, आपस में कोई कहता नहीं ये वाला जुमला सही है, दूसरा कहता नहीं जो मेरे पास है वो जुमला सही है। जैसे सैयदना हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा आते हैं, आकर के अर्ज़ करते हैं अमीरुल मोमिनीन मैंने वहाँ बड़ी अजीब हालत देखी है। अल्फाज क्या हैं? कहा अदरिक उम्मत का कबला यख्तलिफो का इख्तिलाफिल यहूद व नसारा। कहा अमीरुल मोमिनीन संभाल लीजिए नबी की उम्मत को, संभाल लीजिए इस मामले को, ऐसा ना हो कि जैसे यहूद व नसारा की किताबों में इख्तिलाफ की वजह से कई कई नुस्खे उसके बन चुके हैं, ऐसा ना हो कुरान मजीद के साथ भी यही मामला हो जाए। मैंने लोगों को क़िराअत के मामले में झगड़ते हुए देखा है। प्यारे पैगम्बर सलाम के ये अजीम सहाबी बात सुनी है और सुनी अनसुनी नहीं की, जैसा हमारे साथ होता है। हर साल पानी से इलाके डूबते हैं, लोगों के घर तबाह होते हैं, इलाकों के इलाके ज़ाया होते हैं, लोगों का करोड़ों का नुकसान होता है, और हाकिम वक़्त इसी बात पे फ़ख्र महसूस करता है कि वो अपने पांचे गीले करके दो तस्वीरें उतरवा के वहाँ से अपनी लैंड क्रूज़र पे बैठ करके वापस चला जाता है, और लोग समझते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा इंसाफ हो गया कि हमारे हाकिम वक़्त ने हमारे साथ आकर के अपनी शलवार के पांचे गीले कर दिए, और हालत फिर उसी तरह बरकरार रहती है। कोई तब्दीली नहीं है, कोई उसके लिए इंतज़ाम नहीं है, कोई आने वाले साल के लिए बंदोबस्त नहीं है, कोई उन लोगों के नुकसान का इजाला नहीं है, कोई उनकी तकलीफ़ों का मदावा नहीं है, उनके हालात पे गौर नहीं है। बस एक ही बात पे सबकी बात चलती जा रही है कि हुकूमत हमारे हाथ में रहे, हाकिम हम रहे, तुम्हारे साथ क्या होता है तुम बर्दाश्त करो।
तुम बर्दाश्त करो, तुम घबराओ नहीं। तुम्हारे घर गिर जाए तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे मकान गिर जाए तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा कारोबार तबाह हो जाए तुम घबराओ नहीं, इसलिए कि तुम्हें घबराने के लफ्ज़ का पता ही नहीं है कि जब घबराहट आती है फिर वो इसी तरह आती है जैसे ये तुम्हारा कमांडर इस वक्त अपनी मौत व हयात की कश्मकश में पड़ा हुआ है। हाकिम वक्त के लिए बहुत बड़ी दलील और बहुत बड़ी रहनुमाई का जरिया है कि बड़े बड़े उठे हुए सर एक वक्त आता है कि वो गिर जाते हैं, बड़े बड़े सतून वो मुनहमिद हो जाते हैं, बड़े बड़े दरख्त जिनकी शाखें और जिनकी जड़ें ज़मीन की मजबूत तहों में होती हैं वो भी कभी हवा के झोंकों से उल्टे गिर जाया करते हैं। ये मुसलमानों और हाकिमों के लिए ख़ास तौर पर रहनुमाई है। खलीफातुल मुस्लिमीन ने सुना, फरमाया वो नुस्खा जो तैयार करवाया गया था नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू बकर ने तैयार करवाया था, वो नुस्खा अबू बकर के पास रहा, फिर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास चला गया, फिर मेरी और आपकी माँ सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास रहा। उस्मान ने पैगाम भेजा, अम्मा जी हमें उधार आरियतन ये नुस्खा अता कर दें, हम इसकी कॉपी करवा करके आपको ये नुस्खा इसी तरह से वापस कर देंगे। और यही मुसलमानों का शियार रहा है कि वो किसी की चीज़ को अपनी बना करके हाकिम और हुकूमत होने के नाते किसी की ज़मीनों जायदादों पे कब्ज़ा करना तो दूर की बात है, वो कुरान का नुस्खा भी उधार मांग करके लेते हैं और फिर उसकी कॉपियाँ करवा के ऑर्डर जारी होता है कि दुनिया में इस वक्त जहाँ भी कुरान मजीद के नुस्खे मौजूद हैं अगर कहीं भी इख्तिलाफ होगा तो ये नुस्खा जिसको आज हम मुसहफ़ उस्मानी कहते हैं, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिसको तैयार करवाया है। और कुर्बान जाएं मेरे भाइयों, कैसी वो अजीम हस्ती होगी। आज कायनात के कोने कोने में दुनिया का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर कुरान का नुस्खा मौजूद न हो, और जहां पर कुरान का नुस्खा मौजूद है वहां पर कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर मुजम्मा मलक अल फहद का छपा हुआ कुरान मौजूद ना हो। और जहां भी मुजम्मा मलक अल फहद का छपा हुआ कुरान मौजूद है उसके अंदर लगा हुआ कुरान मजीद का जो मतन है वो वही है जो सैयदना उस्मान ने बनवाया था। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 7 चीज़ों का जिक्र किया था कि सब उन यजरी लिल अब्दी अजरुहुन्ना फी मौतिही फी कब्रिही बाद मौतिही, कि जिन 7 चीज़ों के ज़रिए इंसान को कब्र में जाने के बाद भी उसका अजर व सवाब मिलता रहता है, उनमें एक चीज़ थी ओ मुसहफ़न वरसहु, अगर किसी ने किसी को कुरान का नुस्खा लेकर के दिया, कुरान मजीद लेकर के दिया और वो उस कुरान से तिलावत करता है, उस कुरान से पढ़ता है, उस कुरान की किरात करता है, तो जब तक ये कुरान मजीद उसके पास मौजूद रहेगा ये बंदा कब्र में भी चला जाए, पढ़ने वाला जब तक पढ़ता रहेगा इस कुरान के पढ़ने का अजर व सवाब उसको मिलता रहेगा। आज मेरे भाइयों हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी है, हम सैकड़ों रुपए के फूलों के बुके लेकर के अपने दोस्तों को देते हैं जिनकी ज़िंदगी एक दिन होती है। सैकड़ों रुपए के फूलों के ये बने हुए बुके हम गिफ्ट करते हैं, बीमार हो तब भी, सेहतमंद हो के आए तब भी, किसी खुशी में हो तब भी, किसी गमी से निकल के आए तब भी जाके फूलों का तोहफा देते हैं। अगले दिन देखा वो कहाँ होता है, वो बाहर रूढ़ी पे पड़ा होता है, बाहर मजबले पे पड़ा होता है, गंदगी के ढेर पे पड़ा हुआ होता है। अगर हम यहाँ बैठे हुए एक लम्हे के लिए नज़र दौड़ा के देखें, हम में से कितने वो लोग हैं जिन्होंने किसी को कुरान का नुस्खा लेके दिया हो और वो पढ़ रहा एक लम्हे के लिए अपने अपने। हम सैकड़ों नहीं लाखों रुपए खर्च करते हैं और लाखों मामलात के अंदर शादियों ब्याहों पे मैंने सिर्फ उलमा को, और ये शायद फ़ख्र इन सआदत बज़ोरे बादूनेस, ये अल्लाह का फ़ضल है। आप किसी भी शादी में चले जाएं, कोई जो है वो हज़ारों रुपए का गिफ्ट पेश कर रहा होता है, कोई जो है वो इन्वेलप के अंदर हज़ारों रख के दे रहा होता है, और अगर उसी महफ़ल के अंदर कोई दीन की उस्तादा आ जाए या कोई दीन का मुदर्रिस और मुअल्लिम आ जाए, उसके हाथ से दुल्हन को तोहफ़ा मिलता है तो उसमें कुरान मजीद का नुस्खा होता है, उसमें हदीस की किताब होती है, उसमें तोहफ़ातुल उरूस होता है और उसमें इस तरह की इल्म किताबें होती हैं। तुम्हारा दिया हुआ तोहफा चंद लम्हों के बाद वो उसके दिमाग से भी महव हो जाता है। लेकिन जिसने मुसलमानों वाला तोहफा दिया, हमारे दोस्त हैं उकाड़ा में,
डॉक्टर अमजद साहब, मैंने पूछा एक दिन, मैंने कहा ये माजिद साहब से आपका तारुफ कैसे हुआ? कहते ये मुझे मिलने के लिए आए थे और पहली मुलाकात में ये मेरे लिए कुरान मजीद मुतरजम जो है उसका तोहफ़ा लेके आए थे और मैंने कुरान देख के समझा कि ये अजीम आदमी होगा जो कुरान का तोहफ़ा लेके आया है मुझे मिलने के लिए, और मेरे साथ ताल्लुक़ की बुनियाद इसने कुरान मजीद के तोहफ़े से रखी है। इसका मतलब है कि ये एक अजीम आदमी है। और यही जुमला सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था। और ये अल्फाज मेरे भाइयों, सबसे पहले मेरा अपना नफ्स इसका मुखातिब है, उसके बाद तमाम भाई बहनें बेटे बेटियाँ इसकी मुखातिब हैं। अमीर अल मोमिनीन ने एक जुमला बोला था, कह के अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। फरमाया लौ अन्ना कुलूबना तहुरत, अगर हमारे दिल पाक हो जाए, अगर हमारे दिल पाक हो जाएं, मा शबिना मिन किताब रब्बिना, तो हम कुरान पढ़ते रहें, कभी भी ऐसा ना हो कि हम कुरान पढ़ के थक गए हों, हमारी तबीयत पे मलाल ना आए, हमारी तबीयत उससे भरे ना, बल्कि मज़ीद से मज़ीद की कोशिश जारी रहे। आज अगर हमें कुरान पढ़ने का ख़याल नहीं आता ना, तो इसका बहुत बड़ा सबब यह है कि हमारे दिल पाक नहीं। और ये अमीर अल-मोमिनीन, उस अमीर अल-मोमिनीन ने कहा है कि जिसके हया की गारंटी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दी है, जिसकी तहारत की गारंटी अर्श वाले रब ने दी है, और जिसके लिए रब्बे कायनात ने कहा लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, जिसके लिए मेरे नबी के सहाबा दरख्त के नीचे बैठ कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्शों पर उन पे रादी है और रादी होने का सर्टिफिकेट उनको जारी किया है। वो फरमाते हैं लौ अन्ना कुलूबना तहुरत मा शबिना मिन किताब रब्बिना, अगर हमारे दिल पाक हो जाएं तो अल्लाह के कुरान से कभी भी हमारे दिल सैर ना हो। और फरमाते हैं अल्लाह की कसम, मेरे ज़िंदगी में कभी भी दिन ऐसा नहीं आया जब मैंने कुरान मजीद को सामने रख के ना पढ़ा। ये कुरान के हाफिज थे, कुरान के कारी थे, कुरान को ज़ुबानी पढ़ सकते थे, और अर्श वाले रब ने इनको फिर सादत पता क्या अता फरमाई? जब शहीद करने वाले शहीद करने के लिए आए, और उससे पहले इनको बशारत मिल चुकी थी और नबी रहमत फरमा चुके थे कि उस्मान अल्लाह तुम्हें कमीस अता फरमाएगा, लोग छीनना चाहेंगे उतारना ना। जब लोगों ने आकर के कहा था अमीर अल-मोमिनीन इजाज़त दे, हमारी तलवारें आपका दिफा करने के लिए काफ़ी हैं, फरमाया था मैं मदीना की गलियों में अपनी ज़ात के लिए खून बहाना पसंद नहीं करता। उधर से शाम से ख़त आया था, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमीर अल-मोमिनीन इजाज़त दें, इतनी फ़ौजें भेज दूँगा कि ये चंद बलवाई तो क्या, अगर पूरे दुनिया भी, पूरा इलाका भी और पूरी के पूरी कौमें मिल के आ जाएं, वो आपकी तरफ देख नहीं सकेंगी। फरमाया मैं अपनी ज़ात के लिए मदीना रसूल में खून बहाना कतई तौर पर बर्दाश्त और पसंद नहीं करता। जब कहने वालों ने कहा था अमीर अल-मोमिनीन चलो इतनी बात मान लें कि यहाँ से हिजरत करके, यहाँ से मदीना छोड़ के आप शाम में अमीर अल-मोमिनीन मुसलमानों के अमीर सैयदना मुआविया के इलाका शाम में चले जाएं, वहाँ पर हालात बिल्कुल मुतमईन है। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था तुम क्या कहते हो कि मैं मौत के डर से नबी का पड़ोस छोड़ के चला जाऊँ? अल्लाह की कसम है मैं अपना ना इलाका छोड़ूंगा, ना मैं किसी को इजाज़त देता हूँ कि मेरे लिए अपनी तलवारें निकाले। और यही बात थी और यही सबब था जो उनके दिलों में, जो उनकी सोचों को अपने मकसद तक पहुँचने में मुआविन बनी। वो जानते थे कि उस्मान हमारे खिलाफ तलवार नहीं निकालेंगे। हसन हुसैन जैसे, अली अल मुर्तज़ा जैसे सहाबा ने आके अर्ज़ किया था अमीर अल-मोमिनीन इजाज़त दे दे, सिर्फ आपके घर की चौकीदारी करना चाहते हैं। फरमाया मैं अपनी ज़ात के लिए किसी का खून बहाना बर्दाश्त नहीं करता। और जब इस शख्सियत को उन इल्ज़ामात के साथ शहीद किया गया जो कि सैयदना उस्मान की ज़ात के करीब से भी नहीं गुजरते, किसी ने कहा ये अकरबा परवरी करते हैं और किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाए, अमीर अल-मोमिनीन ने छत पे खड़े होकर यही कहा था लोगों तुमने मुझे इस पानी के कुएं से पानी पीने से रोका है जिसको मैंने अपनी जेब खास से खरीद करके
کے مسلمانوں کے لیے اس طرح وقف کیا تھا کہ اگر میرا بھی ڈول اس میں ڈلتا ہے تو عام مسلمانوں کی طرح ڈلتا ہے، اپنا حق سمجھ کے نہیں ڈالتا ہوں، اور تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو جس مسجد کی تنگی میں کائنات کے امام نے کہا تھا جو 7 والا رقبہ لے کر کے مسجد کا حصہ بنا دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا میں عثمان نے اپنی جیب خاص سے وہ علاقہ اور جگہ خرید کر کے وقف کیا تھا، اور فرمایا تم تیسری بات کرتے ہو، مجھ پر الزام لگاتے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اسلام میں 3 چیزوں کی وجہ سے قتل کرنے کی اجازت ہے۔ ایسا آدمی جو اپنے بڑھاپے کے اندر شادی شدہ ہونے کے بعد اگر زنا کا ارتکاب کرے اس کو قتل کرنا اسلام میں جائز ہے۔ کہ اللہ کی قسم ہے اسلام لانے کے بعد تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی جاہلیت میں بھی اس برائی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذوالحجہ کو جب اپنے ہی گھر کے اندر اپنی بیوی کے سامنے شہید کیا گیا تو اس وقت بھی قرآن سامنے کھلا ہوا تھا، اور الفاظ کیا تھے؟ فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، عثمان گھبرانا نہیں ہے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے کافی ہے۔ اور پھر عثمان کو شہید تو کر دیا گیا، لیکن امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جملے بولے تھے۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا جن جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا ہے ان میں کوئی بھی اپنی طبی موت اپنے بستر پہ نہیں مرا، ان میں سے ہر ایک کو قتل کیا گیا ہے اور اپنے قتل کی وجہ سے مرا ہے۔ اور امام ابن سیرین نے کہا، فرمایا میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، دوران طواف میں نے ایک آواز سنی، کہنے والا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دینا، لیکن امید نہیں ہے اللہ تو مجھے معاف کرے گا۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، او اللہ کے بندے، اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں طواف کے دوران یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں ان لوگوں میں شامل تھا جو حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، اور میں نے اپنے ذہن میں یہ ٹھانی تھی کہ عثمان کے چہرے پہ تھپڑ ماروں گا۔ میں زندگی میں تو اپنی مرضی پوری نہ کر سکا، بستر پہ پڑے ہوئے عثمان کے چہرے پہ میں نے اپنے ہاتھ سے تھپڑ مارا تھا، اور وہ ہاتھ میرا اسی وقت اس طرح ہو گیا تھا جیسے سوکھی ہوئی لکڑی ہوتی ہے۔ اور امام ابن سیرین کہتے ہیں میں نے اس کا کپڑا اٹھا کے دیکھا تو اس کا ہاتھ واقعتاً اس طرح تھا جیسے سوکھی لکڑی ہوتی ہے، اور کہتا ہے میں نے بڑی معافی مانگی ہے اللہ سے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، مظلوموں کا خون اللہ رب العالمین کا قانون ہے، رب کائنات کا قانون ہے، لانصرنک ولو بعد حین، مظلوم کی اللہ مدد ضرور کرتا ہے اگرچہ تھوڑا وقت مؤخر ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔